Ready? ठीक है जी, चलो जी. Good morning guys, formal good morning. Can I have some, I request the guys at the back, please come forward, don't make me shout. Otherwise with the fans and all, you will not be able to hear me clearly. So just come in front if you are having difficulty in hearing me. ठीक है? So we are going to start with our work. Before we start, there's a small apology. On 17th, I couldn't take the class because there was some issue at home. So I gave a very short notice. So apologies for that. But hopefully you got the message in time. So and last week we didn't have the class for whatever reason. So let's just start with our work. So we are continuing from where we were. We had started off talking about what are services, what is the basic of service. Basically, the first class is usually about covering the entire syllabus, touching upon all the topics that are there. So we've touched upon briefly what are services, what are the key characteristics of a service. So that's where we had stopped. So we'll continue from it. So like I said, introduction to services we are continuing, and then we'll start with the next part, which is the service economy. Okay. So before we start, like I requested you, I know it's a month ago when I requested you. So I know it was a month ago when I requested you, keep your eyes open for services and other things that you see around you. So since yesterday, 24 hours from today, yesterday and today, up till now, what services have you observed, consumed, used, and what did you observe about that particular service? That is something that I want you guys to use your brains, just a sort of icebreaker at the start of the class before we go ahead. So pick any service. I am sure since yesterday all of you have been consuming lots of services. Every one of us. I have been also consuming services. The best service I have been consuming is my internet provider, watching a TV series on Netflix. I have been consuming that service. ठीक है ना? So for my observations are immaterial. I want to see your observations. You are supposed to be observing things. So what services have you consumed since yesterday? Up till you've entered this class, what services have you consumed? Batao. And I want you guys to participate, otherwise it doesn't make sense. A bus service. What were the characteristics about that service? What did you observe? I want you guys to think. And everybody's consumed services. The best one, like I said, is your internet. ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने 24 आवर्स में व्हाट्सएप नहीं यूज़ करा होगा, इंटरनेट सर्विसेज नहीं यूज़ करी होंगी, स्विगी जोमेटो करा नहीं करा, आई डोंट नो, ओला उबर करा नहीं करा पर्सनल, बट यू हैव यूज्ड योर टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, यू हैव यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी, again a service which comes to your homes. Many of you have come on the Delhi Metro, again a service, a bus service, e-rickshaw. What are all of these? These are services. You've consumed them. And you've been consuming them without thinking about what I'm consuming, because that's the way these basic services are. But अगर मैं आपको बोलूँ आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, you've been to some financial consultant, you've been to somebody who's advising you on a job, आपको वो services याद रहती हैं. But electricity, water, you've used it. I hope so in the morning you brushed your teeth, opened the tap, water came out of it. Water. Delhi Jal Board is a service. Everything is a service. All I wanted to do is, what did you observe? So if I take the Delhi Metro, something which all of you have used and you actually have used it consciously. मुझे metro में जाना है, मुझे कहीं जाना है, I have to take the metro. What did you observe about the services of the Delhi Metro? There has been one change over the past 2-3 years. What have you observed? Have you observed that change happening? एक आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट टाइम जब हम लोगों ने क्लास में बताया, I know long time back, but we did talk about something called automation of services. So in the Delhi Metro, where did you observe automation of services? In the Delhi Metro, and you would have seen it every day whenever you've taken the metro. What is that service? Yeah. Sir, earlier there used to be people giving the tickets. The automatic ticket vending machine.
ETVM या TVM जो भी उसका नाम है, the ticket vending machine, which I end up not using because I have a smart card. Why waste time in a line? But that machine is an automation of service. क्योंकि एक एम्प्लॉय को एंड व्हाट देव डन इज आई ऑब्जर्व दिस. आई वेंट टू, आज के संडे है ना, हाँ, तो फ्राइडे को आई हैड गॉन टू साउथ कैंपस. सो आई एंटर्ड, जाते टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट व्हेन आई वाज कमिंग बैक आई वाज ऑन दुर्गाबाई देशमुख द साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन. सो आई एंटर्ड, वहाँ पे एंटर करते लेफ्ट पे देयर दीज 3 वेंडिंग मशीन्स है टिकट वाली, अगर आप लोग कभी वहाँ गए हो तो. फिर एक काउंटर है जो खाली था, वहाँ पे लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे, बट दे वर नॉट DMRC स्टाफ, दे वर passengers waiting outside. And उसके बाद there was this hospitality services वाला person, a 15-20K employee sitting there just guiding people how to operate that machine. Whereas if I had to man the ticket counter, I would have had to have a DMRC employee sitting there distributing tickets. Vending machines are faster. Theoretically, अगर आपको use करना आता है तो vending machines are faster. अगर नहीं आता तो then obviously there's a challenge. But when I have a person sitting there, it costs me money. And if that person is in a bad behavior mood, then it costs me customer service. A machine आपसे कैसे badly behave करेगी? Can a machine behave with you badly? Not performing well, yes, but आप उससे क्या बोलोगे? आप क्या उसको बोलो? अच्छा मशीन है, खराब हो गई, आप छोड़ दोगे. बट एन एम्प्लॉय यू कैन ब्लेम, यार इसने मेरे से बदतमीजी से बात की, इसने मेरे पैसे फेंक दिए, मेरे मुंह पे कार्ड फेंक दिया, सर लो भागो. दे कुड हैव डन दैट. वेदर दे डू इट और नॉट इज अ सेपरेट स्टोरी, मैं वहाँ नहीं जा रहा, बट दे कुड हैव डन इट, दे कुड हैव हैड. सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज बाय ऑटोमेटिंग, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे सर्विस के वेरिएबल्स हैं हम उनको रिड्यूस कर रहे हैं. वेरिएबल इज द ह्यूमन बीइंग डिलीवरिंग द सर्विस, नॉट द सर्विस इटसेल्फ. सो ऑटोमेशन में आप एक वो वेरिएबल रिमूव कर रहे हो, बट उससे आप एक और वेरिएबल डाल रहे हो जिसको यूज नहीं करनी आती वो ऑटोमेटेड सर्विस, वो क्या करेगा? ही इज रियली नॉट एन एम्प्लॉय, ही इज जस्ट एन हाउसकीपिंग स्टाफ जिसको बोला वहां बैठ जा थोड़ी देर के लिए. दैट्स नॉट हिज जॉब. ही इज नॉट ट्रेन्ड टू हेल्प. द वे आप अगर ATM में जाओ, आप गार्ड से पूछते हो भैया ATM चल रहा है कि नहीं, भैया कैसे चल रहा है, वो इज ही अ बैंक एम्प्लॉय? He is just supporting you. अच्छा मेरे को कुछ पता है, अच्छा इसमें ना ऐसे करके नहीं, कार्ड को ना उल्टा करके डालोगे तो चल जाएगा. He can give you those tips and tricks. But apart from that, can he do anything for you? No, he can't. He is not an employee. He is not authorized to deliver at that particular service. He is just helping you out. So उससे क्या होता है, automation से variability आ जाती है. Especially it matters in India because especially for Delhi Metro. अब आप सोचो दिल्ली में DTC की बस में यू हैव एन ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन. वेरी गुड फॉर यू एंड मी, वेरी गुड, सेव्स आवर टाइम. गए, एक स्मार्ट कार्ड टैप करा, छुट्टी. बट व्हाट अबाउट द ऑडियंस दैट एक्चुअली यूजेस द DTC बस? आर वी देयर प्राइमरी ऑडियंस? नो. प्राइमरी ऑडियंस कौन है? द मोस्ट लोएस्ट ऑफ स्ट्राटा ऑफ पीपल हु आर गोइंग देयर बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट वे ऑफ मूविंग अक्रॉस द सिटी. उनके लिए तो वो चीज़ रेलिवेंट नहीं है ना. अब आपके फ़ोन में, आपके पास फ़ोन में NFC है, टैप एंड पे वाले जो वो कार्ड्स में आता है आजकल, NFC है. डू यू थिंक द पीपल हु आर यूजिंग द DTC बस हैव अ फोन विद NFC इन इट? अगर है भी तो उनको यूज़ करनी आती है. सो व्हेन वी ऑटोमेट द कॉन, प्रो तो हो गया, सेव्स आवरसेल्फ. द नेगेटिव इज कि इट कैन कॉज, जिसको वो सर्विस यूज करनी नहीं आती, दे मे नॉट यूज योर सर्विस, वो छोड़ के चले जाएंगे, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा. और जैसे मेरे बैंक ने करा है, एक उन्होंने पता नहीं उन्होंने कहाँ से क्यों घटिया सा AI सिस्टम ले लिया है. एंड ऑल दे सेज नाउ, इंस्टेड ऑफ IVR होता है ना पहले, नंबर 1 प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर हिंदी, पूरी एक वो मेन्यू होता है पेज बाय पेज. अब उन्होंने क्या करा जी, आप जाओ, सो देयर इज दिस AI बॉट विच कम्स, प्लीज टेल मी इन अ फ्यू वर्ड्स व्हाट डू यू वांट टू नो. और उसको कभी भी मेरी भाषा समझ में नहीं आती है. किया या क्या नाम है उसका, कोटक की है, तो पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर द नेम. एंड ऑलवेज आई हैव टू नाउ स्पेंड 1 मिनट एक्स्ट्रा वेटिंग फॉर हर. तो वो बोलेगी प्लीज टेल मी इन अ फ्यू वर्ड्स. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा, या मैं कब कुछ बोल भी दूंगा. आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड.
फिर वो मैं इसको दोबारा बोलूंगा, फिर वो थर्ड टाइम अपने आप बोलती है अच्छा आई एम कनेक्टिंग यू टू आवर IVR सिस्टम। भाई पहले ही कर दे, मेरे दो मिनट क्यों वेस्ट करे। लॉजिकली ऑटोमेशन ऑफ सर्विसेज मेक सेंस, but it may not always make sense. So that is the point that I wanted you, for example, with one service to observe. ये होती है observation. So whenever you go out now, when you go home after your classes, or you run away in between your classes, or you decide to go to Connaught Place in between your classes, wherever you are going, however you are going, you are consuming a service. Please keep your eyes open on how different services differ. कैसे डिलीवरी हो रही है, क्या हो रहा है उसमें. Keep your eyes open. That is how that will help you learn कि when you are the service delivery manager, after you do your MBA, you get your job, you get a position where you are influencing the delivery of your service. ये learnings आपके तब काम आएंगी, अभी नहीं आएंगी, तब आएंगी. But observation starts right now. So please do that. Okay. Any other service anybody wants to mention apart from DMRC? Anybody? किसी ने कोई सर्विस नहीं कंज्यूम की है? अगर कंज्यूम किया तो ऑब्जर्व नहीं करिए, ऑफ कोर्स. कंज्यूम तो करिए, ऑब्जर्व नहीं करिए. फूड डिलीवरी में क्या ऑब्जर्व किया आपने? स्विगी जोमैटो में क्या ऑब्जर्व किया आपने? दैट्स द मॉडल. आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने लास्ट टाइम स्विगी जोमैटो से कुछ मंगवाया था? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल? हर बारी भैया कहाँ हो, भैया बता दो घर कहाँ है. यूजुअली दैट हैपेंस. अनदर थिंग आई ऑब्जर्व वाज वन टाइम हमें कहीं आई यूजुअली कहते जो मेरे घर के पास के आउटलेट्स हैं ना, मैं उनसे खुद ही ले आता हूँ जाके, बिकॉज यूजुअली स्विगी एंड जोमैटो टेक मोर टाइम. गए, ऑर्डर दिया और ले आए, वो 15 मिनट में हो जाता है काम. स्विगी जोमैटो विल टेक एटलीस्ट 45 मिनट्स फॉर द होल प्रोसेस टू टेक प्लेस. नथिंग रॉन्ग, वो उनका बिजनेस मॉडल है. सो अभी हमने मंगवाया, सम अर्जेंसी में जा नहीं पाए, क्या रीज़न था. वी कॉल्ड अप थ्रू स्विगी. सो द डिलीवरी गाय केम ऑन अ बाइसिकल, not a scooty, not a bike, a bicycle. Because Swiggy also is running this service where the last mile delivery, if it's a very nearby order, less than मेरे घर से that outlet is about 800 meters, less than a kilometer होगा, 1 किलोमीटर होगा आराम से. रोड से आओगे तो 1 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है. अगर गली से आओगे अंदर से तो 500 मीटर भी नहीं है. Obviously that's the way it is. So that guy came on a cycle, बाइसिकल, नॉर्मल पेडल वाला बाइसिकल. और अगर आप थोड़े से दूर वाले आउटलेट से मंगवाओगे जो 2-3 किलोमीटर दूर है, तो वो बाइक पे आएगा, ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस. डिड यू ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कॉल्ड फॉर स्विगी एंड जोमैटो? दैट इज ऑब्जर्व. ठीक है ना. सो ऑब्जर्व, कीप योर आइज ओपन, अदरवाइज आपको फिर बाद में ना यू विल हैव डिफिकल्टी इन गिविंग एग्जाम्पल्स इन द एग्जाम. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स. वॉट यू आर डूइंग इज ऑब्जर्विंग में आप एग्जाम्पल्स इकट्ठे कर रहे हो. सो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द न्यू इनोवेशंस हैपनिंग इन सर्विस डिलीवरी इन इंडिया. अब आप क्या लिखोगे इसमें? कोई थ्योरेटिकल तो है नहीं ना इसमें, कोई थ्योरी तो है नहीं जो आप लर्न करके आ गए एग्जाम में. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कहाँ से आएगा उसमें? ऑब्जर्विंग से. सो प्लीज कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन. Even a smell you can get it. जैसे for example you guys can try that. हम अभी ये परसों का एग्जाम्पल. सो आई पार्क माई कार एट, आई डोंट नो अगर नॉर्थ दिल्ली का आप लोग कोई हो, पैसिफिक मॉल है, मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की बाहर सर्फेस वाली पार्किंग में, एंड आई वॉक डाउन. सो मॉल का गेट आता है पहले, फिर मेट्रो स्टेशन की एंट्रेंस आती है. सो आई पास्ड इट, एंड द बेस्ट थिंग दैट व्हेन आई वाज पासिंग, वहाँ से AC की हवा एक्चुअली बाहर आती है थोड़ी सी, एंड देव गॉट अ वेरी गुड परफ्यूम. The mall uses a very good air freshener. और वो मेरे को मॉल क्रॉस करते हुए वो स्मेल आती है. And it just reminded me that okay, this is a good clean mall in the sense that I can bring my kids, bring my family, and we can have a sort of a fun time roaming around the mall only. Nothing else, just roaming around. That's also a service.
That is also a service. Why don't I take them to my neighborhood market? वहाँ पे मुझे पता है डॉगी भी घूम रहा होगा, गाय भी अपना ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच छोड़ के गई होगी. That's the way normal markets are. ऐसा नहीं है कि कोई मेरे एरिया में कुछ स्पेशल है या कुछ किसी एरिया में नहीं है. हर नेबरहुड मार्केट में डीडे वाले में एक गाय और एक डॉगी तो जरूर मिलेगा. Fact of life. That is not there here. What are they doing? By controlling access, they are providing me a platform which is neat and clean. That is the service. नीचे फूड कोर्ट में गया, टेबल पे बैठे. The moment we got up, within 30 seconds somebody had come to clean the trays. Service. And वो service outsourced है. Some agency जिससे they've hired that staff, Proton या कुछ ऐसा नाम था. The guy was wearing a t-shirt. So he came, he did the cleaning, he went away. ना मॉल का कोई उसमें involvement है in the sense of delivery, ना मेरा कोई involvement है. But by buying food there, when I'm paying the service charge, when I'm paying the extra inflated prices that they're charging, I am cross paying for this service. ये है observing. So please keep your eyes and ears open when you are observing a service. Now this is where we had stopped, so we'll just continue from this point to our next part. So how does offering a service or delivering a service help me? So I have divided into two parts. One is the customer, जो मुझे benefit मिल रहा है, and one is it to the company who is offering that service. So like this mall, Pacific Mall, whoever owns the mall itself, I don't know the name of the entity, but by offering me a better place to work or a better place to experience services, I could go to another mall. मेरे एरिया में बहुत सारे malls हैं. But why do I like going to Pacific? एक तो सबसे पहले नया है. Then it's a luxury mall. नॉर्थ दिल्ली में कोई नहीं है और malls बहुत सारे हैं. यूनिटी है, रोहिणी में भरे पड़े हैं malls. I go there, वहाँ का क्रोमा मेरे लिए अच्छा है. यूनिटी में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, वहाँ पे पार्किंग है पीछे. So मेरे को वो एडवांटेज है. So I go to that क्रोमा. राइट, बट वहाँ पे कभी मुझे कोई एंटाइसमेंट नहीं हुई कि मैं वहाँ के फूड कोर्ट में जाऊँ. पैसिफिक में होती है बिकॉज इट्स नियरर, इट्स क्लीन, इट्स नीट, इट्स एन एक्स्ट्रा सर्विस दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू मी, एंड एज अ रिजल्ट आई एम डूइंग शॉपिंग देयर ऑल्सो. यूजुअली मैं मॉल से शॉपिंग नहीं करता. आई प्रेफर टू गो टू कनॉट प्लेस और कमला नगर टू डू माई शॉपिंग. मॉल्स आई नो द प्राइसेज आर इन्फ्लेटेड. बट अभी आई वेंट अगेन पैसिफिक में ही, वी वेंट देयर, वी आर हैविंग अ स्ट्रोल. तो मैंने कहा चलो मॉल टहल के आते हैं, बच्चों को घुमाना था. सो मैंने कहा चलो मॉल टहल के आते. सो वेंट टू अ बाटा स्टोर अपस्टेयर्स, लाइक द प्रोडक्ट दे वर सेलिंग, लाइक द प्राइस दे वर सेलिंग इट एट, वी बॉट इट. सो क्या हुआ इवेंचुअली? नंबर 3 देखो उधर, हायर वॉलेट शेयर. मीनिंग जो स्पेंडिंग मेरी बाटा के किसी और स्टोर में होनी चाहिए थी, वो मेरी यहाँ हो गई. बिकॉज दिस मॉल इज प्रोवाइडिंग मी एन extra layer of service. I could go to the same Hush Puppy Bata store in Kamla Nagar. वहाँ पे ना पार्किंग है बाहर, आजकल तो पार्किंग वाला अटेंडेंट भी नहीं है. ऊपर से गणपति जी के 2 स्टॉल लगे हुए थे, पार्किंग का वैसे ही अंदर बुरा हाल है. और ऊपर से वहाँ पे अगेन द सेम डॉग काउ स्टोरी दैट हैपन्स, इट्स देयर एज वेल. सो फॉर मी पैसिफिक में ये एडवांटेज, मेरी गाड़ी आराम से पार्क हो गई, हम लोग आराम से अंदर चले गए. इट्स सेफ, इट्स क्लीन, इट्स यूजर फ्रेंडली. हायर वॉलेट शेयर. सर्विस का क्या मतलब है? क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हो? सो इफ आई टेक अ Xiaomi फोन और अ सैमसंग और एन एप्पल और एनी मोबाइल फोन, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं. अब आप फ्रिज लेने जा रहे हो, सैमसंग और LG की सर्विस सपोर्ट है कि नहीं? आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है, डज दैट सर्विस सेंटर एग्जिस्ट नियर बाय? कैन आई अफोर्ड इट? व्हाट आर द स्पेयर पार्ट्स? एक बेसिक क्वेश्चन है. दीज आर ऑल सर्विसेज. कहने को आपका वो फ्रिज प्रोडक्ट है, बट वो प्रोडक्ट इन सर्विसेज के बिना नहीं चलता. दीज आर लाइक, आई कॉल सर्विसेज द मैगी का मसाला. टेस्ट मेकर होता है. यू कैन मेक नूडल्स, यू कैन मेक योर मैगी विदाउट पुटिंग इन द पाउडर, बट व्हाट्स द टेस्ट इन इट? टेस्ट कहाँ से आता है? सारा वो टेस्ट मेकर में से आता है ना. दिस इज सर्विस, दैट इज सर्विस. आई नो इट्स अ वेरी बैड एनालॉजी, मैगी एंड सर्विस, but I think that's the best way I can explain it. The service is the one that adds the flavor.
It's not the primary product, but it's the one that gives the primary product the taste and the shape and the texture and the flavor and the ingredients, whatever word you want to use. So service enhances my usage of a product. And if it is enhanced, then I become a loyal customer. Then I stay with the brand. I am sticking with the brand. So brand stickiness marketing में आप लोगों ने marketing करी है आप लोगों ने basic marketing management. आपका SEM 3 है ना ये? तो SEM 1 में तो आपने SEM 1 SEM 2 में तो पढ़ा होगा ना? So customer stickiness क्या होता है? But the multi-million-dollar question is याद किसको है? पढ़ा तो होगा सबने, बट आई नो एग्जाम के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रोल ऑल डिलीट पूरा ब्रेन खाली कर देते हैं, कुछ नहीं याद करना हमें उसके बाद. कस्टमर रिटेंशन से ज्यादा द कस्टमर इज स्टेइंग विद यू. स्टिकीनेस मतलब वो आपसे चिपक के बैठा है, इन दैट सेंस. वेरी बेसिक वर्ड ऑफ लुकिंग एट इट. बट स्टिकीनेस हियर मीन्स दैट आई कंटिन्यू यूजिंग द सेम प्रोडक्ट because I'm happy with the additional services that are being provided to me. I'll give you one example. मेरे पास घर पे एक Whirlpool का फ्रिज है. Okay? I don't know हमारा यूसेज हैवी है या वो प्रोडक्ट वीक क्वालिटी है, I don't know क्या रीज़न है. बट when we bought the product, it has those glass trays. जाली नहीं है उसमें, वो ग्लास वाली स्पिल प्रूफ वाली ट्रेज हैं उसमें. And they keep breaking because they've made out of plastic and glass, and they keep breaking. I don't know क्यों, they keep breaking. But Whirlpool doesn't give you those trays extra. नहीं मिलती, ना आप उनके सर्विस सेंटर से मंगवा सकते हो. But when the fridge was new, I remember we broke 2 or 3 प्लास्टिक के बिन्स, वो उन्होंने दे दिए वापस. तब वो नया मॉडल था. But now since the model is out of production, they don't deliver spare part support. आफ्टर सेल्स में स्पेयर पार्ट्स नहीं है जी सर, ये मॉडल नहीं बनता अब, तो उसके पार्ट्स नहीं मिलते. मेरे लिए तो वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रनिंग फ्रिज है. बट इससे क्या हो रहा है, नाउ आई एम कंसिडरिंग स्विचिंग टू, आई एम कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू फ्रिज. एंड बिकॉज वर्लपूल हैज बीन सो स्टूपिड इन गिविंग मी आफ्टर सेल सर्विस, आई एम कंसिडरिंग मैं वर्लपूल लूंगा ही नहीं दोबारा. व्हाट इज हैपनिंग? कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज गोइंग डाउन, and therefore my level of stickiness and loyalty is also disappearing. मुझे कोई इशू नहीं है उस प्रोडक्ट से, but because they are not providing me the after sale service that I need, it is affecting my usage of the primary product. That is where the drama lies. Then if you look at it from the customer's perspective, enhance the product, ease of usability, simplify, add value, right? So services add value. The way I mentioned about the Pacific Mall, the value addition is the environment, the ambience, the kind of brands that are there. और आपको वहाँ पे you will see a crowd. We went on Saturday evening one day, फूड कोर्ट में लाइन लगी हुई थी बर्गर किंग के बाहर ऑर्डर करने को. इतना क्राउडेड है, लाइन लगी हुई थी बर्गर किंग के बाहर. आर नंबर केम लाइक 3, 4th, 5th नंबर था हमारा, इतनी भीड़ थी. सो इट्स जस्ट देयर. देन फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, differentiation. Now, what is differentiation from a business perspective? Differentiation is not just being different. Differentiation means here, go back to your marketing definition. Differentiation here means that my product has some unique features, some unique capabilities. How we are different, how we are defining our identity in the mind of the customer. सो मेरे आई एम श्योर आप लोगों के एरिया में भी ऐसे मॉल्स होंगे जिनमें वो वाइन एंड बियर शॉप्स के अलावा कोई कुछ नहीं चलता. मेरे एरिया में एक है, उसमें सिर्फ मैकडोनल्ड्स चलता है, दैट्स इट. और आजकल अब बर्गर सिंह और KFC भी है वहाँ पे. तो बट मैकडोनल्ड्स इज देयर एंकर, और पिछले 10 साल से मैकडोनल्ड्स ही उस मॉल को जिंदा रख रहा है फॉर वट एवर रीजन, प्रॉपर्टी इशू, कोविड इशू, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. एंड दैट मॉल इज कंप्लीटली अबैंडन्ड. सिर्फ मैकडोनल्ड्स का जो एरिया वही साफ है, रेस्ट ऑफ इट इज कंप्लीटली सुनसान. यू डोंट वांट टू गो देयर. आई डोंट वांट टू टेक माय किड देयर इनसाइड द मॉल. व्हेन इट कम्स टू पैसिफिक, चलो जी, जब चलना है चलो. आई लाइक गोइंग देयर. दैट्स द डिफरेंशिएशन. मैकडोनल्ड्स पैसिफिक में भी है, मैकडोनल्ड्स मेरे घर के सामने वाली मॉल में भी, एंड बोथ ऑफ देम आर ब्रांड न्यू.
तो मेरे घर के सामने वाली मॉल वाला भी रेनोवेट हो गया. इट ऑल्सो हैज द QR स्कैनर्स, इट ऑल्सो हैज व्हाट यू सी इन अ नॉर्मल ब्रांड न्यू मैकडोनल्ड्स. You'll see the same thing, but it's just that the ambience is horrible. So I usually use it only for drive-through. गए drive-through से सामान लिया, निकल गए, जहाँ जाना है ले गए. But when I have to sit and eat, I go somewhere else. Differentiation. अगर मुझे बोलो क्रोमा जाना है, एक क्रोमा प्रशांत विहार में भी है, एक क्रोमा M2 के मॉल में भी, एक क्रोमा यूनिटी मॉल में भी है रोहिणी में. I prefer going to यूनिटी, क्योंकि वहाँ पे सामने पार्किंग है, अंदर पार्किंग है, मॉल अच्छी है, मेंटेन्ड है, क्लीन है, नीट है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल द सर्विसेज दैट आर देयर. डिफरेंशिएशन. व्हाई स्टोर A ओवर स्टोर B और सर्विस प्रोवाइडर A ओवर सर्विस प्रोवाइडर B? व्हाई PVR ओवर सिनेपोलिस, ओवर आइनॉक्स, ओवर फन सिनेमास और जो भी ब्रांड्स हैं? व्हाई A ओवर B? व्हाई डू यू चूज दैट? Why do you choose that? आप लोग सोचो, why do you choose that? Why would you prefer PVR over Cinepolis or vice versa? They are providing something different from. That is differentiation, and if I am providing a differentiated service, then I am adding value, and if I am adding value to your product and service delivery that I am giving, I can get a greater share of the customer's business, meaning I get a higher wallet share, meaning I get to monetize, earn. So if I go to PVR, yeah, I gave you that Cinepolis वाला example. Cinepolis में जाओ, 300-350 की टिकट है, ठीक है, समझ में आता है. I went there, paid a 350 की टिकट थी. मैं कौन सी मूवी देखना था? I went to watch this one, Mission Impossible 7, जो लेटेस्ट वाली आई थी अभी. I went and watched it. I went alone क्योंकि मेरे बेटे के लिए it was too loud. So I went alone. So I went, saw it, and the ticket was about 350, reasonable, but the popcorn was $700, and I didn't buy it. If I go to a PVR, the ticket is about 300, popcorn is about 450, and what PVR does is they provide at-seat dining. So there's a guy who will come, ask your order, seat number wise, and then they will bring it to you. Or you can go to the counter, book your order, pay, and then come back, they will deliver it to you. Cinepolis doesn't do that service. At least I didn't observe it. But the PVR I went to, it's always available. They just ask you for your Audi number, seat number, and then they will deliver the product there. So again, they have the staff, they have the capability. If they can monetize it, then I will pay more. And then I will become a regular, loyal customer to PVR. Cinepolis अच्छा लगता है क्योंकि उसकी मॉल अच्छी है. But PVR offers better service. So now it's a choice between the ambience or the actual service. दोनों service का part है. दोनों service का part है. But there's a difference between A and B. ठीक है ना? The same way you could observe with Prime Video. I get Prime में I get 4K video क्योंकि I am a Amazon Prime subscriber. Netflix में मेरे को वो HD मिलती है, UA वो SHD मिलती है, standard height, standard HD मिलता है क्योंकि I have taken the cheaper वाला plan. Service. Every service activity that I buy into has a price attached to it. And the bigger problem that becomes, that's the next question that we will be asking. If I pay more for a service, what happens to my level of expectations? It goes up. If I'm paying more, it goes up. We expect that to happen, right? So that is the next challenge of offering high quality service at a high price. Customers demand more. They want more, they demand more, they need more, they expect more, and as a result, their ability or it is very easy to annoy a high service customer. क्योंकि उसकी demands इतनी सारी हैं कि आप कहीं पे भी you go wrong, the customer gets annoyed. Whereas if I am in the DTC bus, कभी एक के पीछे 3 बसेस आ जाएंगी, कभी आधा घंटा एक नहीं आएगी, आप खड़े रहो, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते. But if I have booked Ola Prime और Uber का वो जो Uber Prime है, कौन सी वाली Uber क्या है, अच्छी वाली कौन सी है? Uber Go है, Go के ऊपर कौन सी है? Which shows इतने दिन हो गए मुझे Ola Uber book करे. Which shows that. But the point is that if I have taken that expensive wala part of Ola, I wanted to perform properly, wanted to work.
बिकॉज आई एम पेइंग मोर, सो मुझे वो सर्विस चाहिए। आप समझ रहे हैं? दैट्स वेयर द चैलेंज लाइज। ओके, नाउ लेट्स लुक एट, हाँ जी, Ola cabs or Uber cabs also have the tab facilities to enjoy. हाँ जी, To enjoy the ride, they have the tab services. अच्छा वो मेरे को नहीं था, मैं इतना ओला उबर मेरा कम यूसेज है। माई यूसेज इज ओनली माई ओन कार या माई डेली मेट्रो, खत्म। मेरा दोनों के अलावा कोई यूसेज नहीं आज की डेट में। सो आई हैव नॉट ऑब्जर्व, बट यू आर राइट, दे कुड बी। सो एक मेरे को याद है, एक टाइम पे ओला स्टार्टेड, बड़ा हल्ला मचाया उन्होंने इस सर्विस का। वी हैव ऑन बोर्ड वाईफाई, they made a very big noise about it about couple of years pre-COVID है ये 1980-19 का होगी। We have on-board Wi-Fi। पता चला वो ड्राइवर का मोबाइल फोन हॉटस्पॉट होता है। सो अगर उसका फोन हॉटस्पॉट हो रहा है और वो जीपीएस भी उसमें रन कर रहा है और उसका भी सेम डिवाइस सेम नेटवर्क है जो आपका है, तो स्पीड तो उतनी आ रही है, आपको क्या डिफरेंस मिला उसमें? बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ टाउटिंग इट एंड कस्टमर लाइक, पता है ये जोक है, you ignore it. But when it comes to the basic service, अगर उसी में कोई issue है, then there is a problem, right? So these are the common issues. So let's just take them, just read them for a moment, and then we'll take examples for each, just so that you guys are in the synchronization. Actually, if you guys exhaust the first sheet, I have another sheet to fill the attendance if it is left out. आप लोग भर के पास कर दीजिएगा please. Okay, so just look at this for 1 minute. Okay, then we'll give examples for each point for it to be clear to all of you. कोई चीज बिल्कुल ही आपको यूनिक लग रही है तो मुझे बताना, then I'll try and spend a little bit more time on it. कंप्लीटली यूनिक जो आपने कभी ना सुना हो सर्विसेज के बारे में। Okay, fair? So let's start with examples. Now I want you guys, all of you, not the 4-5 people in the front who are regularly participating, I want the others also in the class to please leave their mobile phones, shatano, put your phones inside, naughty people, concentrate. ठीक है ना? So let's take the first part. Can a service be stored? Yes, it can, if you look at the camera there. Right now this service is being stored in an electronic format. But what is missing? From that YouTube recording, what is missing? Your participation. You can't participate with me. There's no engagement, there's no two-way engagement. One way है, मैं बोल रहा हूँ, आप YouTube video सुन रहे हैं. But if you have a question, that's the limitation of this particular platform, you cannot ask it from me. But when we usually do then we used to do online classes during COVID, we had that chat window at the bottom. So my students could put a message or put a question in the chat window, and then I could see and I could perhaps answer it if necessary. So it cannot be stored. So it has to be consumed, कहते हैं ना, fresh. Service has to be consumed fresh. It cannot be a stale service. Okay. Intangibility. Is it tangible? A Delhi metro ride, is it tangible or intangible? It's both. Intangible in terms of service, tangible in terms of moving from point A to point B through a train. So, but intangibility here means that if I'm delivering a class, after you've left this class, what physical evidence do you have of this class having taken place? आपके पास क्या फिजिकल एविडेंस रिटेन होती है? लर्निंग है, फिजिकल एविडेंस तो नहीं है ना. लर्निंग इज इंटेंजिबल. नोट्स है, बट आर नोट्स कैप्चरिंग द एंटायर सर्विस बीइंग डिलीवर्ड इन द एंटायर 2 आवर क्लास? दे आर जस्ट अ स्नैपशॉट. एक वीडियो है, आपने वीडियो में से स्क्रीन ग्रैब कर लिया, अब वो स्क्रीन ग्रैब आपको पूरी वीडियो के बारे में तो नहीं बताएगा ना. दैट्स व्हाट नोट्स डू. बेसिकली माई पॉइंट इज इंटेंजिबल इसलिए है बिकॉज वट एवर यू आर लिसनिंग, you are learning, it's going into your head and you are making notes for your reference. But you are not recording or copying or transcribing the entire class. And even if you do, you cannot capture my physical gestures. It's still intangible. ठीक है ना? But when you buy a pen, you walk away with a pen. But when you've bought a class, you walk away with learning, and learning is different for every single one of you.
But this pen remains same for all of you if you buy the same pen and the same model and the same color or whatever. So services are intangible. Perishable, obviously there is no storage, so they die out. The moment I said the word, it's dead. It's dead. It's perishable. Immediately perishable. और ये आपको दिखेगा, perishability you will see when you look at movie tickets, airline tickets, train tickets. अब आप plane में जाओ, take a flight, take a movie ticket. Many movie theaters offer you on spot discount. अगर आप मूवी शुरू होने से 5 मिनट पहले गए और सीट्स खाली हैं, you will get them at a cheaper price. Why? Because the moment the movie starts, उस खाली सीट की कोई वैल्यू है? अगर प्लेन टेक ऑफ कर गया तो क्या वैल्यू है उसके बाद उस सीट की? खत्म हो गई, इमीडिएटली खत्म हो गई. बट इफ यू बाय अ न्यूज़पेपर, यू कैन रीड इट, you can use it to hit mosquitoes, you can use it to store, you can use it to wrap food, you can use it to wrap things inside it, you can use it on in your cupboards as floor cover, as the covering of the shelves, you can set fire to it, you can sell it in raddi. There is still a tangible value out of it. An airline seat khali hai to gayi. On the other hand, when you have railways, इंडियन रेलवेज और प्लेन्स में ही, जब जैसे अब ये वीकेंड है, थर्सडे को अगर आपने कोई फ्लाइट देखी 28, 29 को, दैट फ्लाइट वुड बी सुपर एक्सपेंसिव. डू इट नेक्स्ट फ्राइडे, हाफ प्राइस भी नहीं होगा उसका. क्यों? क्योंकि देयर इज सडन डिमांड, राइट? एंड बिकॉज ऑफ द डिमांड मैं कहीं घूमने नहीं जा पाता, क्योंकि जब मेरे पास छुट्टी होती है तब पूरे देश की, पूरी दिल्ली के पास छुट्टी है और सब लोग हिल स्टेशन जा रहे हैं. The same room which I'll get for $5,000 normally, वो suddenly 12,000, 13,000 हो जाता है. Sorry, it's out of my pocket. It's out of my budget. I don't go. That is perishability. So I have to. अब वो जो होटल प्रोवाइडर है, उसके पास ये एक्सटेंडेड वीकेंड्स ही तो है पैसा कमाने के लिए. ऑफ सीजन भी आएगा, खर्चे भी हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, एसेट कॉस्ट भी है. जैसे शिमला था, सडनली यू हैड वेदर एज अ प्रॉब्लम, पीपल कुड नॉट रीच योर होटल फॉर फिजिकल कंडीशंस. आपको भी तो यही अर्निंग है ना, बिकॉज आपको भी पता है आपकी सर्विस पेरिशेबल है, एंड यू कैन नॉट फिल योर होटल रूम और योर प्लेन एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल फ्लाइट. इट्स इम्पॉसिबल. सो वॉट यू डू, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यू आर पैडिंग, जहाँ आपको कम मिल रहा है वहाँ पे यू आर सर्वाइविंग. दैट इज द वे अ सर्विस वर्क्स. Now replicability becomes a question. Now you ask me, same teacher, same slides. If I go to another class and I take another class of services marketing, will it be the same? The slides may remain the same, the atmosphere may remain the same, but because the students change and because I get bored very fast and I don't have any notes to I don't have a speech prepared, every class becomes unique. Syllabus is the same, the quality of students is the same, but because every student is an individual, every service delivery is slightly different. That's where the challenge है. अगर if you go to an Ola Uber भी ले लो, अगर वो दिन की पहली राइड है आपकी, चांसेस आर वो गाड़ी साफ सुथरी होगी. यही रात को 8-9 बजे आप लोगे, उसमें कुछ ना कुछ गंदा मिलेगा आपको, बिकॉज द टैक्सी ड्राइवर इज ऑल्सो टायर्ड एंड यू आर ऑल्सो लाइक मुझे घर ले जा, बस मेरा हो गया दिन, अब मेरे में और एनर्जी नहीं है. इट वर्क्स बोथ साइड्स, वर्क्स बोथ वेज. सो रेप्लिकेबिलिटी बिकम्स अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ क्वेश्चन. Theoretically speaking, a service is easily copyable. जो स्विगी करता है वो जोमैटो करता है. But do you have your favorites? How many of you prefer Swiggy over Zomato? How many of you prefer Zomato over Swiggy? Any specific reason why? Personal bonding कह लो, fair enough. जैसे मेरे साथ है, I checked out yesterday. देखो ना, somebody gifted me a bag of coffee beans. कॉफ़ी मेरे पास बहुत सारी होती है, बट वो ग्राउंड होती है. somebody gave me a bag of coffee beans. So मुझे अब एक कॉफ़ी ग्राइंडर चाहिए उसके लिए. So I was looking at Amazon. फिर मैं कहा नहीं यार महंगा है, चलो फ्लिपकार्ट ट्राई करते हैं. I went to फ्लिपकार्ट, नहीं यार अमेजोन ही ठीक है, बिकॉज द ऑप्शन दैट फ्लिपकार्ट was giving, पता नहीं, I never had a bonding with that offering.
एंड अमेजोन के साथ मेरा इतना बुरा हाल हो गया अब. लास्ट वीक आई वॉज कमिंग होम एट नाइट, हम कहीं से आ रहे थे बाहर, एंड देयर वाज अ गाय मेरे नेक्स्ट डोर नेबर पे, अमेजोन का डिलीवरी एजेंट अपने बाइक खड़ी करके ही वॉज डिलीवरिंग सम पार्सल. फाइन, बट हिज बाइक वॉज पार्क्ड इन अ वे कि मेरी पार्किंग स्पेस ब्लॉक थी. सो मैंने उतर के उसको बोला भैया आप पीछे कर लो, मैं गाड़ी पार्क कर लूँ. ही इमीडिएटली डिड इट, फेयर इनफ. बट देन द मोमेंट आई स्टेप्ड आउट, उसके बाद ही केप्ट थिंकिंग. 2 minutes later when I was parking my car, he came to my door and said, सर आप तुषार सर हो ना? मेरा साथ वाला घर था. हाँ मैं आपके घर पार्सल देने आता हूँ. इतना बुरा हाल है, सोचो. Amazon डिलीवरी एजेंट्स नो मी बाय नेम, दे नो मी बाय नेम एंड फेस. हाँ यही है तुषार, इसी के लिए यही हमारे Amazon का सबसे बड़ा कस्टमर है. Are you getting my point? So there is that, I agree with that bonding part. I am familiar with Amazon's user interface. I am familiar with their return policies. I am familiar with, ऐसा नहीं है कि मैं Flipkart से नहीं खरीदता हूँ. But if I am buying 100 things, 98 are from Amazon, 2 are from Flipkart. That is my personal ratio. I am sure you will have a different ratio for it. But my ratio comes from the fact that I have comfort. But copyability here becomes a question, because if I say that Swiggy and Zomato have a delivery service, why can't I launch another third service? क्यों नहीं कर सकता मैं launch? One is funds, of course, but the point is कि Swiggy और Zomato में difference क्या है? They have their own tie-ups. Delivery agent के साथ tie-ups है, restaurants के साथ tie-ups है. Some of them are exclusive tie-ups. So as a result of it, theoretically the service is copyable. Anybody can come and deliver a class. But is that always possible? So easily copyable को मेरे को थोड़ा सा debate है इसमें. That's my personal debate. Whether you agree to it or not is your personal decision. But whenever you are writing an answer, please provide reasoning. I say to my students also, you want to murder somebody, give me a reasoning first. Reason your answer out. ठीक है ना? So whichever dimension you take, reason yourself. I believe this to be so and so because 1, 2, 3, 4 example A B C D. Reason out your answer. अब जो मर्जी आंसर दो. So I remember there was fun. मेरे को एकदम से याद आया. I did one time 2002 की बात होगी. Such a long time back. मेरे को कहीं कोई competitive exam था. And इसमें they asked us to write about Romeo and Juliet. उस पर कोई synopsis लिखना था. मैंने उसमें लिखा Romeo and Juliet from the point of view of the parents. कि Romeo and Juliet ने they had a romance with each other and they ended up dying for each other. होता है ना, romance रह गया, unrequited love. But you look at it from the parents' point of view, इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है. Are you looking at it? So you can write anything as long as you can justify it, as long as you can provide reasoning for it. तो हम लोग क्लास में क्यों करें? आप ये सारा कुछ टेक्स्ट बुक से कर सकते हो. But by doing it from the textbook, you will not get that reasoning and that observing वाला part. बस वही है, वही difference है बस. हाँ जी? Intent missing. I call it the flavor. The flavor is missing. Flavor होता है हर चीज का. The flavor is when you explain your answer clearly, so that when I am evaluating, I get to know कि आपका क्या मन था. That's the point, right? Then it cannot be patented because there is no standard process. So McDonald's cannot patent the way they make a burger, but Luxor can patent the way they make a pen. But McDonald's and Burger King are different क्योंकि McDonald's की service delivery is different from Burger King and you can choose which one you like more. वो आपकी choice है. Yeah. Services में I see you have heard about Bikram Yoga. हाँ जी? Bikram Yoga, have you heard about it? नहीं. Bikram Yoga is very famous Okay. in US. Okay. So he is producing a service of yoga class. Okay. So in his session, he conducted 26 asanas. And he has copyright of his asana. You cannot copy from others. So how you can Asana is not the service, na? No. The asan is the product. He can have that asan at home. I can devise an asan of my own. But the way I'm sharing it with others is the service. So he cannot patent YouTube ka channel. He cannot prevent anybody from coming up with a 27th asan and then delivering the same service.
His quality lies in the quality of his asanas, the 26 asanas that he has patented, and his delivery style. आप difference समझ रहे हो? So I can patent the service core part, but I cannot patent the delivery. So I can patent mac aloo tikki, but I cannot patent the way I make a burger. That is exactly what you are saying. The asan is the mac aloo tikki का component. वो मेरा है, वो बर्गर किंग कॉपी नहीं कर सकता. बट एक बर्गर के अंदर लेटस डालना है, अनियन डालना है, टोमेटो डालना है, मेयो डालना है, वो बर्गर किंग कॉपी कर सकता है. वो उसको अलाउड है करना. वो यूनिक नहीं है. द टेस्ट इज यूनिकनेस, राइट? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दिस डायमेंशन. ओके, देन कमिंग बैक, इट विल वेरिएट. लाइक आई सेड, पीपल आर ह्यूमन. अब मेरे को ही ले लो आज. इफ आई हैव नॉट हैड माई मॉर्निंग कॉफी, आई वुड बी डिफरेंट इन डिलीवरिंग माई क्लास. और मैं ट्राई भी नहीं करना चाहता. मुझे पता है वो कितना हॉरेबल होएगा. मुझे पता है मेरी और कॉफ़ी की क्या रिलेशनशिप है, मुझे पता है. सो इट विल हैव अ डिफरेंस. इट विल हैव, आई विल बी लेस, मे बी आई विल बी लेस एक्टिव, मे बी आई विल बी लेस अलर्ट, मे बी आई विल व्हाटएवर. देयर विल बी अ डिफरेंस. इट कुड बी बेटर ऑल्सो. कुड बी सडनली एवरीथिंग इज क्लियर टू मी. इट्स डिफरेंट. दैट्स द की वर्ड. वेरिएशन है, और वो वेरिएशन अच्छी भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है. इट कैन वर्क बोथ वेज. दिस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी causes dissatisfaction. This, and it is not the employee's fault, क्योंकि वो एम्प्लॉय है, वो मशीन नहीं है. वो टिकट वेंडिंग मशीन जो DMRC की है, उसको आप बोलोगे मुझे गुड़गांव जाना है, तो जो वो मेट्रो के रूट्स आपको दिखाएगा, आपको वही लेने पड़ेंगे. You have no other option. But with a human being and tell me, नहीं यार, मेरे को ना हॉर्स खास में चेंज ओवर मत करना ना. हॉर्स खास में चेंज ओवर बहुत हॉरेबल है और बहुत लंबा है. सो आई टिपिकल, अगर मुझे चेंज ओवर करना हो तो मैं पहले मैं 3 लाइन चेंज कर लूँगा. अब किसी टाइम पे 2 years बैक आई हैड टू गो टू जामिया. को आई वॉज अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस. मेरे को रोज़ जाना था, एंड इतनी दूर ड्राइव करके तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा. बट सो वॉट आई डिड वॉज, आई यूज टू गो फ्रॉम पिंक लाइन, पिंक टू लाजपत नगर. लाजपत नगर से फिर मैं चेंज करता था उधर ओखला से पहले कौन सा स्टेशन आता है इनका, काली माँ का जो मंदिर है उधर, वही स्टेशन है, उसका नाम भी वही है, मुझे याद नहीं आ रहा, कालका जी. यस. सो आई वुड चेंज द मेट्रो थ्राइस रादर देन टेक येलो लाइन एंड हॉर्स खास से चेंज करो, बिकॉज दैट हॉर्स खास चेंज ओवर वॉज सो हॉरेबल. बट कैन अ मशीन टेल मी दैट? गूगल मैप्स के साथ कितनी बारी होता है, वो ले जाता है जहाँ पे आपको पता है साइकिल भी नहीं घुसेगी, वहाँ पे वो कहता है अपनी गाड़ी ले जाओ तुम. और मेरे साथ एक बारी आगरा में हुआ था. इट टुक मी डाउन अ रोड, मतलब गांव की जो बैक रोड होती है ना, येस इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट उसमें इट टुक मी 10 minutes टू गो टू दैट रोड. मुझे आई हैड टू एक्चुअली टेल माई वाइफ, यू ड्राइव, आई विल वॉक डाउन द रोड एंड गाइड यू कि कहाँ का ऑब्स्ट्रक्शंस है. तो छोटी सी रोड, इट्स नॉट डिजाइन फॉर ट्रैफिक. और मुझे वो बेवकूफ, मैं गूगल मैप्स को ब्लेम करूं कि अपने आप में करूं कि मैंने उसको फॉलो कर लिया. किसकी गलती, आई डोंट नो, राइट? एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव सीन इज दोज ऑफ यू हु हैव एप्पल डिवाइसेस, एप्पल मैप्स पागल है, गूगल मैप्स स्टिल लेस पागल है. एप्पल मैप्स तो आपको, मेरे को हर बार ही बोलेगा रॉन्ग साइड जाके टर्न लो. भाई मुझे भी पता है वहां पे नहीं है टर्न. व्हाई डोंट यू अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर? सो दैट्स वेयर द डिलीवरी पार्ट कम्स इन. वेरिएबिलिटी कैन हैपन इन गूगल मैप्स ऑल्सो, राइट? सो पीपल में तो होएगी. सो प्लीज कीप दैट फैक्टर इन माइंड. देन कम्स द नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम. दिस रूम सीट्स अबाउट what, 70-80 students. If there are more, then what do I do? Sitting capacity तो फिक्स्ड है, क्या करूंगा फिर मैं? So demand fluctuation with service delivery is a big challenge, which is why when you call up your bank, they tell you to wait. Our customer service representative will be available shortly. He is attending other calls. Whatever message they give, meaning वही है that they're trying to handle service. अब जैसे I said, फूड कोर्ट में गए, नीचे भीड़ है, और आधे दिन अगर यही मैं 3 बजे जाऊंगा तो खाली होएगा, यही मैं 8 o'clock जाऊंगा सैटरडे नाइट भरा होगा पूरा. सो हाउ डू आई हैंडल फ्लक्चुएशंस? Now, should I set up my classroom for the theoretical maximum number of students or for the least number of students? क्योंकि everything has a fixed cost investment.
कितने काउंटर होने चाहिए मेरी ब्रांच में? SBI है, SBI में 5-6 होंगे आराम से। कोटक ICICI एक काउंटर से भी काम चल जाता है, कोटक का एक से चल जाता है काम, ICICI में नहीं चलता। बट ICICI जानबूझ के एक काउंटर रखता है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कीप द सर्विस कॉस्ट डाउन। बट उससे क्या होता है? Dissatisfaction because you have to wait longer in the queue, so you have a demand fluctuation, right? So that is where the service delivery, and जब आपके पास ज़्यादा delivery होगी, ज़्यादा load होएगा, what will happen to the quality of delivery? It will go down क्योंकि आपका मन होगा जल्दी जल्दी customers process करो, ठीक है ना? So that's where the challenge lies. Then this whole price and quality thing, how much to pay for a service, how much to pay for a class? पेन का ना आपको स्टिल समझ में आता है, अच्छा इसका लग्जर का 10 रुपीज़ का है तो कैमलिन का भी 10-12 से ऊपर नहीं होगा, अनलेस उसमें कुछ अलग चीज़ है, विच आई डाउट। सो अ नॉर्मल कैमलिन मार्कर विल ऑल्सो बी $10, 9 to 11 की रेंज में ही घूमेगा वो, क्योंकि उससे कम भी नहीं कर सकते और उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। बट वॉट अबाउट द सर्विस? वॉट अबाउट द सर्विस? वॉट अबाउट द सर्विस? वेयर इज द प्राइस एंड क्वालिटी स्टोरी? Where's the price and quality story? Think. I want you to think कि देखो जब एक product होता है, a product has a specific delivery price and then you expect certain expectations from that quality. But उसमें क्या product में क्या होता है? It's very easy to define. Camlin का है तो 10 रुपीज़ है, Luxor का है तो 11 है, समझ में आता है। But a class at an MBA program in SOL versus in FMS versus in some other place, how do you define कि वो quality कैसी होगी? There's a challenge in defining that price and quality relationship. Services के साथ ये बहुत बड़े problem है because we have replicability issues. So अगर आपने यही class यहाँ पे attend की है, would you pay more to attend this class somewhere else? Maybe where the infra is better? I know, but does that ambience change the level of teaching or the level of learning or the syllabus? यही तो complexity है ना, यही precisely complexity है. Somebody says ambience, somebody says syllabus, somebody says teacher, somebody says brand. How do I unite all of them? मार्कर में सिंपल है, 10 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ होगा, 11 रुपीज़ होगा, सारे कॉम्पिटिटर्स इसी ग्रुप में आ जाएंगे. बट व्हेन इट कम्स टू सर्विस डिलीवरी, Why does ISB charge 40 lakhs for a MBA program? इंडिया में वैलिड भी नहीं है वो. फन फैक्ट, इंडिया में वैलिड भी नहीं है वो, क्योंकि इट्स जस्ट अ 1 year 15 month एग्जीक्यूटिव MBA है वो. इट इज़ नॉट लीगली इक्वल टू अ मास्टर्स डिग्री. जो आप कर रहे हो इट इज़ इक्वल टू अ मास्टर्स डिग्री. इट इज़ अ मास्टर्स डिग्री और DU का टैग है. एंड फन फैक्ट इज, जो डिग्री आपको मिलेगी वही सेम FMS वाले को मिलेगी. फन फैक्ट, इट्स द सेम डिग्री. nowhere it is mentioned the college from where I have received that particular degree. So I got a degree of English honors. खत्म. ग्रेड है, रैंक है, ईयर है, खत्म. No college. That is where the question comes. So now if everybody is the same, why FMS, why SOL? सिलेबस तो सेम है. सिलेबस तो सेम है ना. जो मैं BMS में क्लास लेता हूँ OB की, एग्जैक्ट सेम सिलेबस is running in my college with my students. Exactly same teacher, same syllabus, and I was part of the same syllabus committee. मेरा ही syllabus है in which I was part of it. I can make out कि वो the one that I was a part of, ये वही वाला syllabus है. सब कुछ same है. Why CBS? Why SOL? That is where the complexity starts. Why, if I am getting the same degree, why brand A over brand B? College A over college B? क्यों? That is where the complexity starts. How do I ensure कि the service that I offer is differentiated enough in the customer's mind कि वो मेरा service by name मांग रहा है, वो BMS की डिग्री नहीं मांग रहा है, वो BMS की डिग्री प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन मांग रहा है. SRCC भी BCom ऑनर्स देता है और दयाल सिंह भी BCom ऑनर्स देता है. दोनों पे DU का टैग है, सेम डिग्री है दोनों स्टूडेंट्स की. why are people running after SRCC? That is, now can I monetize that brand? SRCC cannot, क्योंकि DU में हम सब बराबर हैं. We cannot charge a higher fee. But in IP University there's a difference.
college A over college B, they have that little bit of flexibility in charging the fee. So जो अच्छा कॉलेज है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा फी चार्ज करता है बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग अ बेटर सर्विस, और जो अच्छा नहीं है वो बेसिक फीस भी चार्ज कर लेते हैं कि उसके लिए वही बहुत है. It's complex. That is the word that I want you to focus on. Complexity है. Product pricing is way easier than pricing a service. क्योंकि सर्विस डिलीवरी में क्या है, एक पेन है, मुझे पता है एक मशीन या एक एम्प्लॉय एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में वाई नंबर ऑफ पेन्स बनाता है. ये एक मैथमेटिकली रेप्लिकेटेड इक्वेशन है मेरे पास. 10 सेकेंड होंगे, नहीं तो 9 सेकेंड होंगे या 12 सेकेंड होंगे, इससे ऊपर नहीं होगा डिफरेंस. बट अगर आपने मुझे एक फ़ोन कॉल किया और आपका डाउट लंबा है, या आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, या आपको बात मेरी समझ नहीं आ रही, आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, मे बी यू आर अ स्लो लर्नर, आपको वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं समझ में, अगर आती तो आप मुझे कॉल ही ना करते. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट एवरी कस्टमर कॉल इज डिफरेंट. इनकी 2 मिनट में खत्म होती है, इनकी 5 में लगते हैं, इसको 10 लगते हैं. एम्प्लॉय तो वही है. अब मैं कॉस्टिंग कैसे करूं उसकी? पेन की कॉस्टिंग मैं कर सकता हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू सैलरी. मेरे पास एक मैथमेटिकल वैल्यू है. एट सर्विस डिलीवरी बिकॉज इट इज सो वेरिएबल, उसकी मेरे पास मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है. ऐसा तो नहीं है ना आप मुझे कॉल करो और मैं एक बजर बजा, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग आवर बैंक. कैन आई डू दैट? नो. बट व्हेन मारुति मेक्स अ कार, every 2 minutes 3 minutes the line moves. So मैंने अगर अपना पार्ट नहीं किया तो गाड़ी चली गई आगे. End of story. वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है. बट विद सर्विस प्राइसिंग बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड. अब मैं कैसे करूँ? ह्यूमन कॉस्ट पे करूँ, नंबर ऑफ टाइम पे करूँ, और वो 10 मिनट के हिसाब से डिवाइड करूँ, 5 मिनट के हिसाब से डिवाइड करूँ. दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ स्टाफ दैट आई नीड. सो स्टाफिंग लेवल्स पे इम्पैक्ट आता है. कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड. दैट इज वाई आई एम यूजिंग द वर्ड कॉम्प्लेक्स. Then it has to be simultaneously produced and consumed. So अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं क्लास ले रहा हूँ और आप लोग यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, what's the purpose of a class? मैं तो वो फिर मैं ड्रामा में एक्टिंग कर रहा हूँ और ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रही है. It has to be simultaneously produced and consumed. Cannot be stored, so it has a link there. Affected by other customers. अब आप लोग हो, देखो 50 or 30, 35 odd people here. Some of you are listening, some of you are not listening. Personal choice. I'm not getting into why you are doing it or not. But if you were being disruptive, if 5 people at the back were being disruptive, जो नहीं है मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, but if you were being disruptive, then you would have an impact on the delivery of these people, customers. And you will see that in metro also. अगर आप लोग शराफत से खड़े हो तो मेट्रो में आराम से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो. पर आप भी गेट पे खड़े हो और जो अंदर से ट्रेन से निकल के पैसेंजर्स आ रहे हैं वो भी गेट पे ही, आप लोग सारे उसी जगह, तो फिर राजीव चौक बन जाता है. नहीं तो पिंक लाइन रहता है खाली, नहीं तो कश्मीरी गेट राजीव चौक बन जाएगा. लिटरली आपको बस आपको नहीं भी उतरना तो आपको उतार दिया जाएगा ट्रेन से. दैट हैपन्स विद राजीव चौक, हैपन्स विद इट, एंड दैट्स द फैक्ट. नथिंग रॉन्ग इन इट. हर इंटरचेंज स्टेशन पे यही होता है. राजीव चौक और कश्मीरी गेट पे तो डेफिनेटली यही होता है. ठीक है ना? सो दैट इज वेयर अफेक्टेड बाय अदर कस्टमर्स. यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन द रोड, आप शराफत से चला रहे हो, द अदर पर्सन इज नॉट, राइट. और एक होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप रेड लाइट जंप करो, दूसरा भी जंप कर रहा है और एक्सीडेंट हो रहा है. अब किसकी गलती है? किसकी गलती है? अब रेड लाइट किसने जंप की? आपने भी की, उसने भी की, लग गई. किसकी गलती है? अब So, affected by other customers. If that customer, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करो, आप बैंक की लाइन में खड़े हो, एक कस्टमर ने पता नहीं 50 क्वेश्चन पूछेगा फालतू का, आपको मन होगा भाई जा, हमारी टर्न आने दे. Haven't you ever had that experience? कि कोई एक है कस्टमर, भाई जा, मेरे को भी करने दे भाई, मुझे भी जाना है, तेरे ही सारे क्वेश्चन है पूछने वाले. you've had that thought. Maybe you act on it or not is a separate story, but सबके माइंड में आता है. So my service delivery quality, अब उसमें आईसीआईसीआई बैंक की क्या गलती है कि वो अंकल आके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? आईसीआईसीआई बैंक की क्या गलती है इसमें? बट आप ब्लेम किसको करोगे? यू आर डिससेटिस्फाइड बाय आईसीआईसीआई में जाओ, बहुत टाइम लगता है, लाइन में नहीं खड़ा, मैं नहीं जा रहा. इज इट आईसीआईसीआई बैंक्स फॉल्ट? ऑनेस्टली नॉट. वो अंकल आ गया, वो अंकल
क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट्स हिज राइट, ही इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट, बट बिकॉज यू आर इन अ रश, उनके राइट से आपको प्रॉब्लम हो रही है. दैट इज सर्विस, दैट इज द डिफरेंशिएशन विद सर्विस. देन कैनॉट बी रिटर्न. अब आपने क्लास अटेंड की, आपने इसके लिए एक्स रुपीज दिए, आपको नहीं पसंद आई, फेयर इनफ, कैन आई क्लेम अ रिफंड? पेन नहीं पसंद है, वापस हो जाता है. डायपर्स नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, मैंने कल ही रियलाइज किया, मैंने गलत साइज मंगवा लिया बेटे के लिए. सो मेरी वाइफ मुझे घूर रही है, बट वील मैनेज क्योंकि वो अभी इतना है, उसमें स्पेस है. बट द पॉइंट इज कि आई कैन नॉट रिटर्न देम बिकॉज इट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट. व्हाट अबाउट अ सर्विस? क्लास अटेंड कर लिया, मैं बोलूँ नहीं मुझे नहीं पसंद है, मेरे पैसे वापस कर दो. आई डोंट लाइक द मूवी, सो कैन आई गो एंड टेल Cinepolis प्लीज गिव मी माई टिकट प्राइस बैक? बिकॉज वॉट हैव आई कंज्यूम्ड? आई हैव नॉट कंज्यूम्ड द मूवी, आई हैव कंज्यूम्ड द एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के पैसे. और अगर मुझे नहीं पसंद आया, कैन आई गो एंड से नहीं मुझे पसंद नहीं आया, मेरे पैसे वापस कर दो? समटाइम्स आई कैन. इन अ सर्विस समटाइम्स आई कैन, मुझे ये सर्विस नहीं पसंद आई, रिफंड माई मनी. इट कैन बी डन, बट टिपिकली अ सर्विस कैन नॉट बी रिटर्न क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, टैंजिबल नहीं है. ठीक है ना? सो दैट्स वेयर द चैलेंज. एंड देन यू हैव एक्सपीरियंस इश्यूज. अब आज की डेट में इफ आई आस्क दीज 5 people 6 people who are participating in class, how was the class, they will give me better feedback in the sense of being more accurate. मैं अगर पीछे के लोगों से पूछूंगा who are maybe not paying that much of attention, maybe they'll say ठीक था, but उनके ठीक था से doesn't give me a real feedback because they have not been paying full attention for whatever reason. That is where experience comes. And फिर सर्विस में सबसे बड़ा आता ही है the one he mentioned, the yoga guru. Why A over B? संस्कार पे इतने सारे आते हैं गुरुज. Why A over B? Nothing wrong. People like it, and I am okay with it. It's personal choice. I may also listen to them sometimes, but I like A over B. I like this one individual who comes because he talks like a human being. Doesn't do too much of the spiritual. Too much of spiritual gyan is also not good. He talks, he'll give you the point of view, he'll give you how to behave and all that stuff, but he's decent. Then you have credibility issues. सबसे बड़ा credibility issue आपको देखा Instagram में जो influencers हैं. Why do you prefer influencer A over B? How do you know it's correct? Only then you can say ना. तो फिर उससे क्या हो रहा है, आपकी credibility build हो रही है. आज X प्रोडक्ट के लिए influencer A said something good, you verified it, you are happy. When he comes to product B, then there will be that credibility happening. कि यार इसने ठीक बोला था, मैं इसी की बात मानता हूँ. That is credibility, and that credibility comes only from experiencing the particular product or service that influencer is pushing, peddling, pushing, whatever you want to call it. और उससे मुझे एक चीज़ ध्यान आई. So नहीं, influencer वाला नहीं, that's a separate example. We'll come to it later. So credibility in service becomes very difficult because credibility build करने के लिए बहुत time चाहिए. Lose करने के लिए one instance. One wrong instance can make you lose your credibility with that particular product or service instantly. But build करने के लिए आप बहुत बारी try करोगे, then you'll be like, अच्छा यार Amazon से अगर मैं एक high quality expensive electronic मंगवा रहा हूँ, तो मैं Amazon से मंगवाऊंगा, Flipkart से नहीं मंगवाऊंगा. That is credibility, right? But Amazon से जब सामान मंगवाओ, many of the times the box is crushed, इधर उधर फेंका होता है. Like चल यार, still it's better, probably. That's credibility. Takes time to build that, right? Then let's look at the evaluation part. Now you look at a service. So अब एक product है, ये product है, कार है, घर है, clothes है. You have parameters. गाड़ी में कितनी सीट्स हैं, माइलेज कितनी देती है, वेट कितना है, साइज कितना है, फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल आता है, ब्रेक का क्या साइज है, सीट का फैब्रिक कैसा है. All those things are very easy to evaluate because they are numbers. But गाड़ी ड्राइव कैसे करती है, is that easy to evaluate?
No, I had an experience one long time back, 2009 की बात होगी. This would be 2009 September, हाँ, around this time. We were buying a new car and हमने बहुत दिन सोचा करके we narrowed it down to two models. One was a Ritz diesel. Ritz तो बंद हो गई अब दिल्ली में, शायद आप लोगों ने देखी हो तो, और एक Swift diesel. दो गाड़ियाँ थी. Exact same size, exact same engine. Only Ritz की look अंदर से थोड़ी सी better थी, funky. Swift was more restrained and decent in that sense. On paper, both of them are exactly the same car, exactly the same features and price में भी कोई 15,000 का difference होगा. That's it. कुछ भी नहीं है. आप 6 लाख की गाड़ी ले उसमें 15,000 की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है. It's a very minuscule amount. But on paper, Ritz made more sense. But when I drove the two cars, for me the Swift made more sense. Even though it was more expensive, even though उसके 3 महीने की waiting थी. So I can evaluate the product on its physical capability. But can I evaluate on how it behaves and works? वहाँ पे influencer आता है. If person X says कि मैंने ये गाड़ी चलाई, मुझे अच्छी लगी, आप भी try कीजिए जाके. You would be considering that. And then when you come to something like a hotel or a haircut, high in experience. Haircut is a very physical experience. जाओगे बाल कटवाओगे, there's an experience to it. And then credibility आती है. अब haircut में credibility नहीं आती, haircut में experience आता है. But when it comes to a repair of a car, how many of you have preferred mechanics? कि अपनी गाड़ी किसी से भी repair करवा लोगे? गाड़ी, bike, whatever, any vehicle. Will you get your vehicle repaired from anybody? I wouldn't. I have a mechanic जिसका मेरे को credible है. वो बोलेगा भैया आपकी गाड़ी में ये खराब है, मैं बोला भैया बदल दो. मैं मान लूँगा उसकी बात because I have a credibility of 31 years with that gentleman now. Going on to 31 years of credibility with his service towards me as an auto mechanic. But will I do it for somebody whom I don't know? No. मैं उसको double check करवाऊँगा पहले. Same way with the doctor. Doctor आपको बोलता है ये दवाई लेनी है. Many times don't take a second opinion. Basic illness हो ना उसका नहीं, वो बहुत high level illness है. You will definitely take a second opinion. Maybe third also. और आप सबसे पूछोगे यार तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुमने किस डॉक्टर को दिखाया था? What are we trying to fix? Credibility. Medical diagnosis में credibility is a very big problem, right? And that you will see. I've seen it with my son. मैं डॉक्टर को अभी my son fell ill, तो मैंने डॉक्टर को क्रोसिन दो और शांत रहो, कुछ मत फिक्र करना, just give him क्रोसिन, वायरल है चला जाएगा. Somebody else may have said नहीं ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो. I would trust my doctor and I did exactly that. Crocin and water, khatam. That's it. Hydration and crocin, khatam. Because I have credibility on that guy. That credibility has come from 6 years of experience with him. And मैं उस डॉक्टर के पास क्यों गया? Because my family doctor recommended him and he said one word, बेटा मेरे बच्चे भी उसी के पास गए हैं. So in that sense उस डॉक्टर की मेरी 92 से रिलेशनशिप है मेरे फैमिली डॉक्टर के साथ. So अगर वो मुझे कहता है ये डॉक्टर अच्छा है, तो वो क्रेडिबिलिटी वहाँ से ट्रांसफर होगी ऑटोमेटिकली. गाइस सुन लो थोड़ा सा प्लीज. या हाँ, gold medalist that doesn't mean he's a good doctor. No. डॉक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस. द डिग्री डज नॉट टेल मी ही इज अ गुड डॉक्टर. द डिग्री गिव्स मी एन इंडिकेटर दैट ही कुड बी अ गुड डॉक्टर. डिग्री से क्या है, मेरी क्रेडिबिलिटी का मेरे को एक वो बेस मिल गया, और हायर बेस है क्योंकि ही इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और मुझे पता है वहां पे घुसने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. सो ही मे बी ग्रेट, सो आई विल हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट हिम, बट not all doctors from great institutions turn out to be good doctors. So जो मेरे फैमिली डॉक्टर है, he is from ये कौन सा है, very small compared to एम्स, ये है इसका महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है,
वर्धा में MGIMS, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा इन गुजरात. ही इज फ्रॉम देयर. एंड माई सन्स डॉक्टर इज एम्स MBBS, एम्स MD. वेरी गुड डॉक्टर, बट जो मेरे फैमिली डॉक्टर है वो उससे बुरे नहीं है. बट दैट डिसीजन कम्स फ्रॉम क्रेडिबिलिटी. बट यू आर राइट, व्हेन आई टेक पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, हमें वो क्रेडिबिलिटी का एक वो ना बूस्ट मिलता है. नाउ इट्स अप टू मी टू यूज दैट बूस्ट प्रॉपरली. सो अगर मैं अच्छा डॉक्टर हूँ तो सब कहेंगे अच्छा एम्स का है और अच्छा है, प्लीज इसी के पास जाना है. बट इफ आई टर्न आउट टू बी बैड एट पेशेंट स्किल्स, फिर मैं एम्स से हूँ चाहे जहाँ मर्जी से हो, डजेंट मैटर. ठीक है ना, दैट्स द प्रॉब्लम. या सर, तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो? in many cases yes, because credibility comes from my experience with that service. जब तक मैं उस सर्विस को 3-4 बार यूज नहीं करूंगा, मैं कैसे बता दूं ये अच्छी है या बुरी है? वन टाइम तो सब अच्छे होते हैं, और ये मैंने ऑब्जर्व करा, अगर आप फर्स्ट टाइम कस्टमर ना सब अच्छे हैं आपके साथ, सारी असलियत पता लगती है जब आप थर्ड या फोर्थ टाइम होते हो. सो आई गो टू होटल्स, अगर एक ही होटल में मैं गया हूँ, वो फर्स्ट टाइम कस्टमर ना वो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सर्विस दे ही देंगे टू कीप मी हैप्पी, टू ब्रिंग मी बैक अगेन. बट इफ आई कम बैक अगेन, चांसेस आर कि मुझे वो प्रॉब्ली इतनी हाई लेवल ऑफ सर्विस नहीं मिलेगी, बिकॉज नाउ आई एम ऑलरेडी अ कस्टमर, आई हैव ऑलरेडी कम अगेन. सो एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रेडिबिलिटी टू फॉर्म. तो ये दोनों की रिलेशनशिप है. किस डिग्री पे है, इट डिपेंड ऑन द सर्विस. सो मेडिकल में इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी, इवन दो आई हैड क्रेडिबिलिटी, क्योंकि मेरे फैमिली डॉक्टर ने वो क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर कर दी इस डॉक्टर को, नए वाले को. देन ही रेकमेंडेड अनदर डॉक्टर टू अस, अगेन दैट क्रेडिबिलिटी गॉट ट्रांसफर टू दैट लेडी, एंड वी वर रीजनेबली हैप्पी विद हर एज वेल. सो वो क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर होता रहता है, बट दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है ना. सो दिस इज वेयर, सो सर्विसेज, आप अगर ये चार्ट देखेंगे, अ रेस्टोरेंट also has, so a restaurant, McDonald's, like we said, is offering two things. एक तो सर्विस है और एक वो फूड का टेस्ट है, राइट. सो इफ यू लाइक फ्राइज, माई सन लव्स देम, सो मैंने हर जगह की फ्राइज ट्राई कर ली. मैकडोनल्ड्स हैज द बेस्ट फ्राइज इन माई ओपिनियन. उनकी लेंथ, उनकी फ्राइंग perfect. You buy it from anywhere else, it is not that perfect, because in McDonald's case उनका पैटेंट क्या है, उनका आलू पैटेंट है. सो जब वो आलू पैटेंटेड है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है. इट मैटर्स. डीप फ्रायर बर्गर किंग के पास भी वही है जो मैकडोनल्ड्स के पास है, मशीन वही है, बट क्योंकि उसके अंदर वो आलू डिफरेंट है, तो इसलिए मैकडोनल्ड्स की फ्राई डिफरेंट है बर्गर किंग की फ्राई. और इन माई केस आई प्रेफर मैकडोनल्ड्स का फ्राई ओवर बर्गर किंग का फ्राई. हाँ जी, बेस कोड आलू पेटेंट हो गया, उसके बाद आप जैसे मर्जी बनाओ उसको, वो आपकी मर्जी है, बट दैट टेस्ट विल रिमेन माई ओन यूनिक टेस्ट. ठीक है ना. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसका ना व्हाट दे टेंड टू पैटेंट इज द स्पाइस मिक्स. हाँ, सो इफ यू टेक एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, आपको इंग्रेडिएंट सबके मिलेंगे, परसेंटेजेस नहीं मिलेंगी. Percentage is where the taste lies. क्योंकि वो फ्रेंचाइजी है. जो ओरिजिनल रेस्टोरेंट होता है उसका टेस्ट ओरिजिनल रहता है. What is happening with all these food vendors in India is, सब लोग फ्रेंचाइजी तो खोल रहे हैं, लेकिन उनको फ्रेंचाइजी मैनेज करना नहीं आता है. मैकडोनल्ड्स क्या क्या करता है? McDonald's spends their entire time ensuring that their franchisees are on target. इसलिए आप McDonald's दिल्ली में खाओ चाहे गोवा में खाओ, the taste is exactly the same. Even though I also know and we also know कि जो procurement है वो हर जगह से हो रही है. अब वो दिल्ली से जो टमाटर नहीं जा रहे ना वहाँ पे, they are having their own unique procurement, but the spice mix जैसे कोक है, अब वो चाहे दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रही हो चाहे केरला में हो रही हो, उसका टेस्ट हर जगह सेम रहता है, बिकॉज व्हाट दे आर कंट्रोलिंग इज द कोर टेस्ट विच इज द मसाला, और इन कोक्स केस द कॉन्सेंट्रेट, और आपने उसमें एक प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ऐड कर दिया, इट्स द सेम टेस्ट. सो दैट इज वेयर कम्स द प्रॉब्लम. जो मेन रेस्टोरेंट है, इट हैज द मेन शेफ,
And if they are not able to maintain quality of the franchisee who's delivering the service, उससे क्या हो रहा है, उनके पेरेंट ब्रांड पे इफेक्ट हो रहा है. विच इज वाई हल्दीराम्स के जो आउटलेट्स है वो हल्दीराम के अपने हैं, नो फ्रेंचाइजीज. सो हल्दीराम में आप जाओगे, हर जगह का टेस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि वो उनका अपना है. जहां पे फ्रेंचाइजी में सर्विस डिलीवरी आ गई, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड में स्पेशली, वहां पे आपका फ्रेंचाइजी मैनेज करना इज द की स्किल, नॉट द प्रोडक्ट. मैनेजमेंट इज द की, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट टेस्ट. नहीं तो फिर क्या होगा, जो एंड्रॉयड के साथ होता है. 6000 के Xiaomi में भी एंड्रॉयड है, 1.5 लाख के सैमसंग Z Flip में भी एंड्रॉयड है. बट इज द एंड्रॉयड द सेम with the cheap Xiaomi and the expensive Samsung? No. But when you buy an Apple phone, उसमें सब में सेम है, क्योंकि वो हाइपर कंट्रोल कर रहा है. उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज है कि यू कैन नॉट इंस्टॉल एनी अदर ऐप, यू हैव टू गो थ्रू द ऐप स्टोर. तो जो वहाँ पे अवेलेबल है वही ले सकते हो. एंड्रॉयड में बाहर से भी थोड़ी बहुत ऐप्स घुस जाती हैं, बट बिकॉज वो घुस जाती है उससे एंड्रॉयड बिकम्स लेस सिक्योर. सो अगेन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, राइट. चलो, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. हाँ, ओके, चलो लेट्स लुक एट स्पेसिफिक इश्यूज विद सर्विसेज जो हम लोग अभी कर रहे हैं. Whatever we've been discussing, we are trying to bring it down in a sequence. ठीक है? Cultural barriers, language barriers, especially if I'm coming from different parts of India, selling my products to different parts of India, language becomes a big problem. Taste becomes a big problem, right? Then channel and partner issues, the same that he was discussing. मैंने फ्रेंचाइजी तो कर लिया, पर मेरा फ्रेंचाइजी ढंग से नहीं काम कर रहा, तो मैं क्या करूँ? हाँ जी, MBA चाय वाला, आई हैवंट एक्सपीरियंस. सो क्वालिटी इश्यूज हैं. स्टारबक्स के सब सेम है, क्योंकि स्टारबक्स डंडा मारता है. मैकडोनल्ड्स सब सेम है, वो डंडा मारता है. डोमिनोज सेम है बिकॉज दे डिवोट देमसेल्व्स. SOPs फिक्स्ड है एंड दे इंश्योर कि दी SOPs आर फॉलोड. बट इंडियन कंपनीज में, हल्दीराम्स को छोड़ दो, फूड में many of them have a very big challenge in franchisee management. उनको वो समझ नहीं आती कि उसकी वैल्यू क्या है. उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कम्स फ्रॉम क्वालिटी. इट टेक्स एफर्ट. इट जस्ट सिंपली टेक्स एफर्ट. एंड ऑफ डिस्कशन. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. देन यू हैव सेल्स इश्यूज. हाउ डू आई सेल माई एग्जिस्टिंग सर्विस टू माई कस्टमर? बाईजूस ले लो एग्जाम्पल. बाईजूस ने खोल तो लिए सेंटर्स, उनको भरे कैसे? देन दे स्टार्ट हॉन्टिंग पीपल. एक वो होता है, दिस इज कॉल्ड स्केयर मार्केटिंग. डेटॉल भी ये करता है. बहुत जर्म्स हैं दुनिया में, डेटॉल यूज करो, यू विल बी हेल्दी. दैट्स स्केयर मार्केटिंग. बाईजूस डिड दैट. मेरे साथ हुआ. सर, आप अपने बच्चे को वो नहीं कराना चाहते? वो कैसे आगे जाएगा, कैसे मैथ स्किल्स लर्न करेगा? सर प्लीज ये प्लान देखिए. Fine, I don't blame them. In that case, the problem is the infra is now big. उसको भरे कैसे? भरने में then they are doing bad things and wrong things. और वही उनका हाल हुआ आज की डेट में. सेंटर्स तो फ्रेंचाइजी तो दे दिए, अब करें क्या, उसको मेंटेन कैसे करें? That's becoming a problem for them. ठीक है ना? So that's where the sales part comes in. एम्प्लॉय चैलेंजेस तो है, क्वालिटी टीचर्स नहीं मिलते, क्वालिटी सेंटर स्टाफ नहीं मिलता. प्रॉब्लम किसको होती है? बायजूस को होती है, राइट? हु इज गेटिंग ब्लेम्ड? द पेरेंट ब्रांड. पेरेंट ब्रांड गेट्स ब्लेम्ड ऑलवेज. देन यू नीड टू कॉन्स्टेंटली ट्रेन योर एम्प्लॉयज सो दैट दे मेंटेन देयर स्किल लेवल्स. अब आप सोचो, मैं एक एयर इंडिया में पायलट हूं. आई एम द हाइएस्ट अचीवमेंट ऑफ एविएशन स्किल्स. आई एम अ फुल टाइम कैप्टन, a very senior pilot, 20 years, 30 years of experience in Air India. Any other airline, Indigo मान लो, Indigo में 30 साल हो नहीं सकता, इसलिए मैं Air India यूज कर रहा हूँ. So I am a senior captain in Air India. I am supposed to have more experience than your age, my age, and I am the pinnacle of achievement. But as per law, every year I have to undergo 3 trainings. नहीं तो I lose my certification. But when it comes to a driver's license, do we have any certification issues? Majority में तो टेस्ट भी नहीं होता आजकल, इतना बुरा हाल है.
ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं होता. Whereas the captain has to undergo 3 mandatory trainings every year, नहीं तो उसका लाइसेंस immediately suspend हो जाएगा. Immediately suspend हो जाएगा. One time he is found drunk on duty, license suspended for X number of days. That's the law. So retraining is required because he has to keep up to date with all the modern technologies, all the modern trainings. उसके लिए ज़रूरी है. But in different professions, it may not be necessary. Depending on the type of service being offered, it may not be necessary. Then, like I have been saying, intangibility gives variety, variety gives complexity. ठीक है ना? So you'll see that in tea. अब Taj Mahal है. Taj Mahal sells you what is known as blended tea, because every tea that they get is from a different plantation, and because of climate, every plantation is different. But does that mean जो आज आपने ताज महल चाय खरीदी और जो आप कल खरीदेंगे उसमें टेस्ट में डिफरेंस होगा? होता है डिफरेंस. Whatever tea you buy, Taj Mahal, Red Label, Brook Bond, whatever brand you buy, does the taste change? Does the taste change? चाय का टेस्ट चेंज हो जाता है. डब्बे में से तो चाय आती है. Assuming you are buying the same brand, you are cooking or making the tea in the same manner, उसका टेस्ट कभी चेंज नहीं होता. हाँ, क्यों? Because they are blending. So वो क्या करते हैं, अगर एक में एसिडिटी ज्यादा है तो दूसरे में से मिक्स कर देते हैं. आप घर पे नहीं वो you make sweet and so you let's say you make fresh lime soda at home. You can blend more lemon or more sugar to get a particular taste profile. That's what they do. But अगर आप organic tea या कॉफी खरीद रहे हो तो वो हर रोज डिफरेंट होगी, क्योंकि वो प्रोक्योर डिफरेंटली हो रही है, वो बन अलग रही है. तो एक फार्म है उसका टेस्ट डिफरेंट है, उसके साथ वाले फार्म का टेस्ट डिफरेंट है, एंड दे आर चार्जिंग यू मनी फॉर द डिफरेंस. वो अलग बात है. बट व्हेन आई एम बाइंग ताज महल और नेस्कैफे फॉर दैट मैटर, दे एंश्योर अ स्पेसिफिक टेस्ट प्रोफाइल. और वो इसलिए करते हैं क्योंकि because that product has intangibility of climate and weather and soil and everything in it, that variety creates complexity and they cannot afford that. Taj Mahal tea cannot afford that, but a specialty tea like Vadam tea can afford it, क्योंकि वो उसी को marketing point बनाते हैं. आज की चाय अलग है, ये सितंबर में प्लग करी गई है, इसका टेस्ट अलग है, और यही आप स्प्रिंग में प्लग करोगे सेम प्लांट, उसका टेस्ट अलग है. एंड आई हैव ऑब्जर्व दैट. सो देयर इज दिस टी कंपनी जिससे आई हैव बॉट प्रोडक्ट्स. इट्स अ कंपनी बेस्ड इन दार्जिलिंग कॉल्ड डॉर्जे टीज. सो उनका एक सब्सक्रिप्शन प्लान था किसी टाइम पे, अभी भी है, मैंने लिया था. दे सेल यू टी एवरी क्वार्टर. तो एक उनका स्प्रिंग टी था, एक समर, एक ऑटम और एक विंटर. सेम प्लांट, सेम फार्म, जस्ट प्लक्ड इन 4 different months, and the taste is completely different on each variety. Same plant है, इतना difference है. Same plant है, same farm है, same employees है, same machinery है, but taste में फर्क है. That is the intangibility. ठीक है. Then repeatability and quality issues, the way we were discussing. फ्रेंचाइजी के साथ हाउ डू आई इंश्योर क्वालिटी एंड रिपीटेबिलिटी? नहीं होती. इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाता. I cannot have enough customer. Now, why can't McDonald's offer you a dosa? Why can't McDonald's offer you a dosa? Or pani puri? Or bhalle papdi? Why can't they do it? They can. Why can't they do it? वो तो आ जाएगा. They'll customize a process, SOP बना लेंगे, कोई भी बना लेगा. But why not? Business model. सो बर्गर किंग आपको मैक्सिकन वॉपर दे सकता है, आपको अमेरिकन वॉपर दे सकता है, आपको इंडियन वॉपर दे सकता है, उसके अंदर जो मर्जी सॉस डलवा लो, बट वॉपर ही रहता है. बर्गर किंग कल को पिज्जा बेचना शुरू कर देगा तो आप खरीदोगे? या डोमिनोज ट्राइड दिस विद द बर्गर पिज्जा. आई डोंट नो इफ यू गाइस एवर ट्राइड इट. हॉरिबल था. इमेज तो होती है बेटा, इमेज इज फाइन. द पॉइंट इज दैट इफ आई एम नोन फॉर पिज्जा, विल यू कम टू मी फॉर अ बर्गर और अ डोसा? नो, क्योंकि आपकी अपनी इमेज है और वो इमेज अच्छी है मेरे लिए, नथिंग रॉन्ग इन इट. द पॉइंट इज कि आई कैन नॉट कस्टमाइज इनफ
बिकॉज माई बिजनेस मॉडल है फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज. अब कल आप बोलो जी बर्गर किंग को मुझे ना एक ना ट्रिपल डेकर बर्गर चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट बिजनेस मॉडल में नहीं है, स्कोप नहीं है, तो नहीं बनाते. तो उसका बहुत एडवांटेज भी है कि माई प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट, बट ज़्यादा कस्टमाइज करूंगा तो ज़्यादा इश्यूज आएंगे. नहीं करते तो कस्टमर कहते हैं यार बर्गर सिंह इज बेटर. बर्गर सिंह और बर्गर सिंह में क्या एडवांटेज है? What does Burger King offer you which Burger King doesn't offer? A so-called Indian taste. A so-called Indian product name. Right? That's where the difference lies. वो उसके लिए उसने it's built a market there. चायोज ने अपने लिए market build कर लिया चाय के साथ. They built a market for themselves. They've copied the Starbucks model, but they've customized everything to suit the Indian environment. So प्रोज एंड अब चायोस कल कॉफी दे दे, स्पेशलिटी कॉफी बेचनी शुरू कर दे, आप जाओगे चायोस के पास? क्योंकि चायोस ने डिसाइड कर लिया मैं अब चाय वाले में डोमेन में हूं, मैं चाय में मेरे से जो मर्जी मांग लो, बट आई कैन नॉट कस्टमाइज टू मच बिकॉज दे हैव बिजनेस मॉडल इश्यूज एंड इट रिमेन्स विद एवरीबडी. देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट, बट दैट्स अ चैलेंज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. अब न्यू सर्विसेज में जो नए लोग हैं, जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं, अब बर्गर सिंह ले लो फॉर एग्जाम्पल, द वे वी वर डिस्कसिंग, फ्रेंचाइजी इश्यूज हैं उसके, डिफरेंट आउटलेट्स टेस्ट डिफरेंट. देयर यूज्ड टू बी दिस चेन, आई डोंट नो अभी भी वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कॉल्ड स्लाइस ऑफ इटली. आई डोंट नो कभी आप लोगों ने इसका नाम सुना है कि नहीं. इट वॉज अ राइवल टू डोमिनोज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. स्लाइस ऑफ इटली करके था, एंड दे हैड पथेटिक स्टोर मैनेजमेंट. सो आई वेंट टू सम रिलेटिव्स प्लेस, दे गॉट स्लाइस ऑफ इटली उन्होंने मंगवाया, जसोला में उनका घर था, जसोला के पास में कोई आउटलेट था, वहां से आया, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से आया. ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, अमेजिंग टेस्ट, वेल पैकेज, ग्रेट, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस. घर आया, स्लाइस ऑफ इटली का नेट से नंबर लिया, कॉल किया, द कॉल वेंट टू देयर एनएसपी फ्रेंचाइजी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर के पास एनएसपी पड़ता है. हॉरिबल फूड, सेम प्रोडक्ट मैंने मंगवाया, same pizza, same sides that I had earlier, I bought them again. Completely different taste. कोई रिलेशन ही नहीं दोनों का. कहने को सेम ब्रांड है, सेम प्रोडक्ट है. But the new guys have repeatability issues. They have more of issues than McDonald's or Domino's will do. क्योंकि ये लोग 50 साल से पिज़्ज़ा ही बेच रहे हैं और बर्गर ही बेच रहे हैं. उनको रट गया है सब कुछ करना. ये लोग नए हैं अभी. They take time to learn. They take time to grow. Right? Then you have this one. How much to customize? कितना customize करा जाए? क्या क्या change करा जाए? Too much customization adds on to my cost. But because I'm a new guy, will you pay extra money for a new product? No. तो मेरे लिए वो I have to maintain that balance. And then comes the question, the pricing of service. And that's the time when these guys become creative. Suddenly, जब tomatoes were $200 a kg, quality was not the issue. The issue was quality and price. Suddenly, McDonald's में बाहर लग गया. We are not able to get tomatoes at a desirable quality. सब मिल रहा है, $250 दो ना per kg. But if they pay that $250 a kg, what do they lose? Pricing. Subway ने tomatoes हटा दिए, Burger King ने हटा दिए, McDonald's ने हटा दिए, सबने हटा दिए. Because that was affecting their pricing. It's not that the product is unavailable, but it's available at a price which they don't want to give. And that's not who they are. But you go to a 5-star restaurant, you ask them for tomatoes, even if it is $250 kg. Sir, please, ये लो. मिलता है क्योंकि वो पे कर रहे हैं उसके लिए. Then you are paying the price accordingly, ना? That's where you are willing to pay that, ना? Right? So, why study services तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मेजॉरिटी ऑफ दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड. हाँ, ये हम करेंगे अभी. सो कीप दिस इन माइंड. कस्टमर सेगमेंटेशन हम करेंगे. वी विल वर्क ऑन हाउ टू सेगमेंट द सर्विस, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्विस फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ customers. A luxury DTC bus, a normal DTC bus, and an economy DTC bus, something like that. Or first class, second AC, third AC, sleeper. Customized है ना? Different service, different quality, different price.
As simple as that. So we will talk about segmentation at one point of time. ठीक है? This we have already covered. इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा. ठीक है. So what we'll do is, अभी I don't think you guys want me to continue. So what we'll do, we'll stop at this point. We'll take strategies and service and start off whenever we do our next class. ठीक है? Thank you. Attendance.